students, welcome back to the channel of Kama Education. In the previous lectures, we have studied about economics, two different type of economics, micro concept and macro concepts. Different definition of the economics by Adam Smith, Alfred Marshall, Chanakya and Robinson. In today's lecture, we are going to discuss one of the most important concept of microeconomics, and that is demand. You can see here on the screen the chapter demand. Look at here, demand, and along with demand, supply. Two are the basic concept, or we can say most important matter of study for microeconomics, and these two individual forces creates the scene of entire market. So how the consumer behaves is called demand, and how the producer reacts called the supply. So let's see the demand. So here the contents of your chapter: meaning of demand, components of the demand, demand function, law of demand, types of demand, and last but not least, elasticity of the demand. This concept can be studied whether you are on the CBSE board or ICSE or any other state board. This concept can helpful for your study the concept demand. Meaning of demand. Most important thing, look at the line. Demand follows the wishes, chases the commodity. Demand follows what? Wishes. Demand किसको follows करती है? Wish को follow करती है. Chases the commodity. To fulfill this wishes, हम किसको chase करते हैं? Commodities को, goods को, services को. So first of all, when we are talking about the demand, when we are talking about the demand, look at the pyramid of demand. This is the pyramid of the demand, and the top of pyramid is your demand. ये यहाँ पर आपकी डिमांड है. आप जब वो माउंटेन को क्लाइंब करते हो या उसके टॉप पे जाते हो, तो उसके लिए आपको स्टेप्स को पार करना पड़ता है. When we are talking about the demand, for an example, you are asking for bike to your parents. पापा मुझे बाइक दिला दो. ऐसे दिला देंगे पापा आपको बाइक? उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको बाइक मिलेगा. तो डिमांड तो है, मुझे चांद पे जाना है, इट इज माई डिमांड, माई विश. कैन यू फुलफिल दिस? नो. व्हाई? नहीं जा सकता, एबिलिटी नहीं मेरे पास वहां पे जाने. सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस between the word demand and between the word effective demand. Look at, I am using what? Difference between demand and effective demand. So what we call effective demand, so for this effective demand we have to see the first definition. The definition is divided in three portions. A relation showing the quantities of goods consumer willing and able to buy
at various prices per period, other things constant. बाकी की बात नहीं करेंगे अदर थिंग्स की। डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय होता है। देखो ये जो पिरामिड है इसके 3 स्टेजेस है। द फर्स्ट स्टेज यानी इसका जो बॉटम है वो है डिजायर टू हैव। सबसे पहले इच्छा होगी, आपके मन में क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 3 कैरेक्टर है। हमारे पास क्या है? 3 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है मिस्टर गरीबचंद। क्या है कैरेक्टर? मिस्टर गरीबचंद। इसका नाम ही है मिस्टर गरीब। देखो नाम कितना जोरदार, मिस्टर गरीब। दूसरा जो कैरेक्टर है हमारा वो है मिस्टर अमीरचंद। और तीसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है मिस्टर कंजूस। कौन है? मिस्टर कंजूस। 3 कैरेक्टर है हमारे पास। मिस्टर गरीबचंद उनकी इच्छा है that he want to buy a motorcycle। इसको क्या चाहिए? एक मोटरसाइकिल चाहिए। विश तो है, ये सोचता है काश मेरे पास पैसा होता तो मैं मोटरसाइकिल परचेज कर लेता। यानी दूसरी चीज विलिंगनेस टू पे भी है। विश टू बाय यानी वो परचेज करने की इच्छा भी है एंड विलिंगनेस टू बाय वो बाय करने की भी, पे करने की भी इच्छा है। विलिंगनेस टू पे वो पे करने की भी इच्छा है। एक चीज जो गरीबचंद के पास नहीं है वो क्या है? एबिलिटी टू पे। गरीबचंद पे नहीं कर सकता। तो यहां पे आप इसको डिमांड कंसीडर कर सकते हो। आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हो? डिमांड कंसीडर कर सकते हो। बट इफेक्टिव डिमांड यहां पे एब्सेंट है। इफेक्टिव डिमांड यहां पे क्या है? एब्सेंट है। डिमांड हुई नहीं, इफेक्टिवनेस उसकी नहीं हुई। ये कंज्यूम नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। दूसरा जो स्टेज है वो है मिस्टर अमीर का। हैज एबिलिटी टू पे। बहुत पैसा, पैसा क्या है? बहुत है। विलिंगनेस टू पे, पे करने की इच्छा भी इसके पास। इसको जो चीजें चाहिए वो परचेस करके लाता है। ही इज यूजिंग एप्पल। आप जो जूठा एप्पल वो यूज करते हो नहीं, क्या कहते हैं उसको? आईफोन। हाँ, इसके पास आईफोन है, इसके पास ऑडी कार्स है, बहुत सारी चीजें हैं। बट नया मोटरसाइकिल जो उसको परचेस करना है उसके लिए विलिंगनेस टू परचेस ये यहां पे एब्सेंट है। मतलब उसको अभी नया मोटरसाइकिल लेने की कोई इच्छा है ही नहीं। जो गरीबचंद को थी वो अमीरचंद को इच्छा ही नहीं है। यानी यहां पे विश एब्सेंट है। विश टू परचेस एब्सेंट है। यहां पे भी डिमांड नहीं बन रही है। इफेक्टिव डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तीसरे कैरेक्टर पे आते हैं।
मिस्टर कंजूस, देखो नाम ही देखो इसका, कंजूस। आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यस, एग्जैक्टली यू आर देयर। यहां पे विश तो है कि मैं परचेस करूं मोटरसाइकिल, यहां पे एबिलिटी टू पे भी एग्जिस्ट करती है। पैसा है इसके पास कि ये पे कर सके, बट वन थिंग अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर ये कंजूस है। ये क्या है? कंजूस है। विलिंगनेस टू पे, ये यहां पे क्या है? एब्सेंट है। ये यहां पे क्या है? एब्सेंट है। तो यहां पे भी इफेक्टिव डिमांड नहीं बन पाएगी। यानी देखो तीन स्टेजेस। पहला मिस्टर गरीबचंद का, जिसकी इच्छा थी मोटरसाइकिल परचेज करने की और मोटरसाइकिल के लिए पे करने की, लेकिन एबिलिटी उसके पास नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसलिए इफेक्टिव डिमांड बन नहीं पाई। दूसरी सिचुएशन जहां पे हम अमीर चंद की बात करते हैं, तो अमीर चंद के पास एबिलिटी है पे करने की, वो चीजों को परचेस करता है, उसकी इच्छा भी है पे करने की, लेकिन अभी उसकी जो विश है वो मोटरसाइकिल परचेस करने की नहीं है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे भी इफेक्टिव डिमांड नहीं बनती है। और जो थर्ड स्टेज है जहां पे हम मिस्टर कंजूस की बात कर रहे हैं, विश टू बाय, उसको परचेस करना है, एबिलिटी टू पे, पैसा भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर वो कंजूस है, विलिंगनेस टू पे बिल्कुल भी नहीं है, पे करने की इच्छा। तो हमारा जो पिरामिड बनता इफेक्टिव डिमांड का, डिमांड है और कैसी है? इफेक्टिव है। ये जो इफेक्टिव डिमांड का पिरामिड एग्जिस्ट होता है, दिस पिरामिड हैज 3 layers. The bottom layer, what we call desire to have, इच्छा होगी. The second layer is depend on your purchasing power. Is depend on what? Your purchasing power. How much you can purchase. और जो third layer है वो willingness to buy. आपकी willingness buy करने की होनी चाहिए. इन 3 लेयर से जो टॉप है इफेक्टिव डिमांड का वो क्रिएट होता है। यानी कि डिमांड के पोर्शन को जब हम अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं, जब डिमांड के कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट बातें हमारे दिमाग में ऑलवेज रहनी चाहिए। हाउ डिमांड कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस और कम्स इनटू द एक्शन, वेयर एनी पर्सन who wish to have the particular commodity along with ability to pay and willingness to pay, then the effective demand comes into the force. Next lecture में हम डिमांड के नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम डिमांड के डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।